Standard students, this is our EVS2 period. Let's start our remaining chapter number 5, evolution of mankind. Okay, today we are going to study Homo neanderthal man. Okay, we studied what is Homo neanderthal, some more stage of development in human evolution is a Homo neanderthal. He is physically big and strong, and he is commonly known as the Neanderthal man because his remains were found at Neanderthal. Okay. Today, Neanderthal primarily live in caves. We studied already this. It is Neanderthal primarily live in the caves. They made tools out of big pebbles as well as from the flux scrap of them. From them. Okay, such tools were fixed in a bones or wooden shaft to make weapons like the sparrow, axe, etc. Neanderthal man is more developed. This man was a more developed man. Okay, so he made these tools skillfully. Okay, and they use leather clothes. Okay, they also use leather clothes. They mainly eat meat. These Neanderthal mans are meat eaters. Okay, they ate meat roasted on a fire. Okay, today and they know the art of making the fire also. उनको फायर कैसे बनाने का वो भी उनको आर्ट मालूम हुआ था. They make the fire by rubbing sticks of hard wood or on each other, or by striking one flintstone on the another to obtain the spark. Okay, flintstone means जो सागर गोटे रहते हैं ना वो वाले, वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करके उसमें से स्पार्क निकलता था. वो स्पार्क्स ड्राई ग्रास के ऊपर वो स्पार्किंग करते थे. उसकी वजह से ड्राई ग्रास क्या होता था, उसमें आग लग जाती थी और दे मेक द फायर. इट इज़ लाइकली दैट द निएंडरथल्स हैड डेवलप्ड सम आर्टिस्टिक स्किल्स. उनको कुछ आर्टिस्टिक स्किल्स भी मालूम था. सम साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर्स बाय प्रोड्यूसिंग ग्रंट एंड अदर प्राइमरी साउंड. मतलब दिस मैन don't know how to speak with each other, didn't know how to speak with each other. They don't know the language, so they didn't know the language. So how do they speak? Like other animals, they producing grunt and other primary sounds. Okay, and they speak with each other. They communicate with each other by producing the grunt or sound. However, it is not known whether they had a developed language system to express their thoughts with the help of the words. लेकिन उनको कुछ भी वर्ड्स मालूम नहीं था, लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी. सो दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय प्रोड्यूसिंग द साउंड. ओके, when a member of a group died, the Neanderthal buried tools, horns, etc. along with the dead body. देखो, इससे पहले जो स्टोन मैन थे, दैट इज which are they? Homo erectus, Homo sapien. वो क्या लाइक अदर एनिमल्स, कोई डेड हो जाता था वो उधर ही छोड़ देते थे. बट निएंडरथल मैन, व्हेन अ मेंबर ऑफ दिस निएंडरथल ग्रुप ऑफ मैन डाइड, द निएंडरथल बरीड टूल्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द डेड बॉडी. वो डेड बॉडी को बरीड करते थे. बरीड मतलब एक गड्ढा खोद के उसके अंदर वो बरीड करते थे एंड उसके बाजू में सब टूल्स वगैरह रखते थे. अल्सो दे अप्लाई रेड ऑकर टू द डेड बॉडी बिफोर बरिंग इट. इट्स इंडिकेट दैट द निएंडरथल हैड इस्टेब्लिश्ड सम रिचुअल ऑफ बरिंग द डेड्स. इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने कुछ रिचुअल्स या कुछ रूल्स बनाए थे फॉर बरिंग द डेड बॉडी. In the course of time, some groups of Neanderthals left Africa and migrated up to the continent of Europe and Asia. बीच में कुछ टाइम में ये जो निएंडरथल का बड़ा सा ग्रुप जो है वो अफ्रीका से माइग्रेटेड टू द यूरोप एंड एशिया. Naturally, they had to face a different climate.
ओके, आपको मालूम है अफ्रीका से ये क्या हो गए, माइग्रेट हो गए यूरोप एंड एशिया। अफ्रीका में देयर इज़ अ वेरी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। ओके, व्हेन दे आर माइग्रेटेड, when they were migrated from Africa to Europe and Asia, they had to face a different environment. They had to adopt new way of living. यहाँ पे आने के बाद उनको they had to adapt new way of living and finding food. इधर उनको पूरे नए तरीके से सब जीने का तरीका सीखना पड़ा, finding the foods. Therefore they went on modifying and improving the tools that were essential इन देयर लाइफ। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने जो टूल्स बने थे उसमें कुछ मॉडिफाई किए, मॉडिफाई मतलब कुछ नई नई चीज़ें उसमें डाली, एंड वी आर इस्टेब्लिश इन देयर लाइफ। हाउएवर द इम्प्रूवमेंट इन टूल्स टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और ये जो इम्प्लीमेंट्स में मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफाई हुए इम्प्लीमेंट, उसमें कितना टाइम गया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ओके, नॉट 1 and 2 years, thousands of years passed, then some modifications in the instrument took place. Okay, Homo sapiens is the name used for human that were more advanced than the Neanderthal man. Okay, अब ये जो होमो सेपियन है, निएंडरथल के आगे वाली स्टेज, दैट इज होमो सेपियन. होमो सेपियन इज द नेम यूज्ड फॉर ह्यूमन दैट वेर मोर एडवांस दैन द निएंडरथल. मतलब ये निएंडरथल से और ही ज़्यादा क्या थे, एडवांस्ड थे. होमो सेपियंस मीन्स इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मैन. अभी लुक हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो सेपियन? होमो सेपियन मीन्स इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मैन, मतलब बहुत ब्रिलियंट मैन. ओके, वी शैल लर्न मोर अबाउट हिम लेटर. द निएंडरथल एंड होमो सेपियंस वेयर नेबर्स फॉर सम टाइम्स इन यूरोप. ये निएंडरथल और होमो सेपियन जो थे वो कुछ समय तक यूरोप में नेबर्स की तरह रहते थे. इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू द रीजन लाइक देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विथ होमो सेपियंस एंड inability to adapt to environmental change, the Neanderthal become extinct. Neanderthal क्यों extinct हो गए? Why Neanderthal become extinct? Why? Because the reason is there that due to the, what is the reason? That their conflicts with Homo sapien. ये जो Neanderthal थे उनका कुछ Homo sapien के साथ conflict हो गए, झगड़े हो गए, and inability to adopt the environmental changes. और इधर का जो environmental changes है उनको ये Neanderthal man adopt नहीं कर पाए, and that's why the Neanderthal become extinct. Extinct मतलब वो जो नस्ल खत्म हो गए. On the basis of C14 dating, it is established that the Neanderthals become extinct about 30,000 years ago. अरे C14 डेटिंग जो है, हाँ, उससे क्या एस्टिमेट किया जाता है कि निएंडरथल कब एक्सटिंक्ट हो गए? अबाउट 30,000 years ago. Now, what is Homo sapien? What is the Homo sapien? Homo sapien means intelligent or intellectual man. We studied here. Homo sapien means intelligent or the intellectual man. Okay, the human species that was more intelligent than any of earlier species was named Homo sapien. Okay, it is intelligent man means Homo sapien. Okay, in Europe Homo sapiens is also known as Cro-Magnon man. यूरोप में होमो सेपियंस को क्या बोला जाता है? क्रो-मैग्नन मैन. ओके, इन यूरोप होमो सेपियंस इज ऑल्सो नोन एज क्रो-मैग्नन मैन. देयर रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. ये जो होमो सेपियंस के रिमेन्स है वो हमें कहाँ मिले हैं? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. होमो सेपियंस मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट टू सूट द टास्क दे नीडेड टू डू. ये जो होमो सेपियन है, इट इज़ अ इंटेलिजेंट मैन. इट वॉज अ इंटेलिजेंट मैन दैन दैट ऑफ द निएंडरथल. सो दे मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू सूट द टास्क दे नीड टू डू. मतलब कौन से टास्क किसके लिए हमें वो टूल्स का यूज़ करना है, उस हिसाब से उन्होंने अपने इम्प्लीमेंट्स में मॉडिफिकेशन किया. दे यूज टू मेक स्टोन ब्लेड्स एंड फिक्स देम इन ग्रोव्स एंड नॉचेस मेड इन वुड और बोन्स हैंडल. उन्होंने जो स्टोन ब्लेड्स बनाए, ब्लेड्स मालूम है, स्टोन के ब्लेड्स बनाए और वो उन्होंने ग्रोव्स में फिक्स किए या फिर नॉचेस में. ओके, होमो सेपियंस हैड
evolved to the, this is the Homo sapien man, okay, like today's man, okay, he is like today's man, he is intellectual than the Neanderthal man, okay. Homo sapien had evolved to the stage of having a fully developed larynx which could produce a range of sounds with subtle difference, okay. Their jaws and the muscles inside the mouth were well developed and the tongue was flexible. देखो अभी इनकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए थे. ये जो होमोसेपियंस थे, इनका जो जॉज था, जॉ मतलब है ना, ये मुख्य जो जॉ रहता है वो जॉ एंड मसल्स मेड द माउथ वेयर वेल डेवलप्ड एंड द टंग वॉज फ्लेक्सिबल. उनकी टंग फ्लेक्सिबल सी थी. हमारी टंग फ्लेक्सिबल है तो उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं, ओके. हेंस होमोसेपियंस कुड यूज देम टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ साउंड्स. उनकी टंग फ्लेक्सिबल थी, इसके लिए वो क्या करने लगे, मेड अ वैरायटी ऑफ साउंड्स एंड मॉड्यूलेट हिज वॉइस द वे ही लाइक. और फिर अपने वॉइस को वो मॉड्यूलेट करने लगे जैसे चाहिए वैसे. जैसे हम लोग भी किसी एनिमल्स का वॉइस निकाल सकते हैं. क्यों? ड्यू टू आवर टंग. हाँ, डॉग, कैट एंड कुकू, ओके. यूजिंग हिज इमेजिनेशन ही कुड गिव नेम टू द डिफरेंट थिंग्स ही सॉ. उन्होंने बहुत सारे इमेजिनेशन किया और उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, अलग अलग थिंग्स को कुछ नाम दिया. एंड कुड पुट हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स इनटू वर्ड्स, ओके. यूजिंग दिस वर्ड्स ही कुड स्पीक एंड कम्युनिकेट. अपने जो थॉट्स और फीलिंग्स है वो कुछ वर्ड्स में वो लिखने लगे, मतलब एक्सप्रेस करने लगे. यूजिंग दिस वर्ड्स ही कुड स्पीक एंड कम्युनिकेट. इन शॉर्ट ही हैड अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम. शॉर्ट में क्या कि इन्होंने एक लैंग्वेज सिस्टम डेवलप कर दी. ही कुड ड्रॉ पिक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एज वेल एज इमेजिनेशन. और ये क्या करने लगे, ये पिक्चर्स भी ड्रॉ करने लगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करके और इमेजिनेशन करके भी. दिस मैन कुड ड्रॉ पिक्चर्स, ओके. ही इवन बिगैन टू मेक आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स भी वो करने लगे. दैट इज़ वाई ही हैज़ बीन नेम होमोसेपियंस. इसके लिए उनको नाम क्या दिया गया है, होमोसेपियन. दैट मीन्स इंटेलिजेंट मैन और थिंकिंग मैन. होमोसेपियन का और भी नाम क्या है, इंटेलिजेंट मैन और थिंकिंग मैन और क्रो मैग्नन मैन, ओके. अंडरस्टैंड, ओके. दिस मच लेसन यू हैव टू read carefully and try to answer the questions. Read carefully, okay.